Okay, dear class 9th students, you are in the lesson drainage. Okay, this is lesson number 3 from geography. Okay, and the name of the lesson is drainage. In the first class of this lesson, you have studied about the river basin, water divide, then difference between the Himalayan rivers and peninsular rivers. So you have a good idea about the some basic concept of this lesson, right? This time, this lesson will not be asked in your examination. Okay? मैम मुझे क्वेश्चन से लिखना है। हाँ, जितना क्वेश्चन लिखा दिया ना उतना ही काफी है। अब जितना आगे बोलेंगे उतना लिखना, नहीं तो वो इतना कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन आंसर लिखना। लेकिन इस लेसन का बहुत अच्छा आइडिया सबको होना चाहिए। Why? Because this lesson is a good source of your general knowledge. Okay, so yeah, you should study this. And in your syllabus, you have to study about the location of the rivers. What is the direction of flow of the rivers, from where to where the river is draining, what is the source and what is the mouth of the river, whether it ends in Arabian Sea or in the Bay of Bengal. So all these points should be in your knowledge, right? So there are at least 12 rivers about which you should know how to mark them on the map of India. Okay, so this is in your syllabus. Map work is important for your examination. So let us start from here. From the two extreme northern rivers. Okay. What is the heading of the map? Major rivers. Major rivers. Major rivers. Okay. So firstly, Major rivers. you should know about the location of Indus and Satluj. These are the two rivers. So here is Lake Mansarovar. Are you seeing the pointer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि इसका रिवर इंडस का ओरिजिन कहाँ है? तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेक मानसरोवर, हाँ, नियर लेक मानसरोवर। और तुमको पहले भी बता चुके हैं कि जैसे मानसरोवर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा वाटर मानसरोवर से ही आ रहा है। मानसरोवर से भी आ रहा है, आसपास बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम इसको ज्वाइन करते जाते हैं, जिससे इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होके ऐसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। कश्मीर में देखो, कश्मीर में, ठीक है, और कश्मीर में होते हुए गिलगित बल्तिस्तान यहाँ पर है, यहाँ से होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर कर जाता है। एंड आफ्टर एंटरिंग पाकिस्तान एंड पासिंग थ्रू अ लॉन्ग कोर्स, रिवर इंडस ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी नियर कराची. Its delta is near Karachi. Okay, so this is the route of the river Indus. So you will start from here near Lake Mansarovar and you draw this line like this in Kashmir, okay, no, in the northwest direction. And then after turning and entering into Pakistan, it will turn towards southwest direction. This is southwest. Okay, so what is the direction? In the beginning it is northwest, draining northwest, flowing towards northwest, and then flowing towards southwest, and at last entering into the Arabian Sea. So what is the source and the mouth of the river Indus? Tell me. Ma'am, near Mansarovar Lake is the source Ma'am, of near Mansarovar Lake. Mansarovar and Mansarovar Lake. Okay, and from the beginning, yes, the Indus River starts from the beginning from near the Mansarovar Lake. Then it enters Jammu and Kashmir, and from the border from Gilgit Baltistan, it enters in Pakistan. okay, Pragya was saying. Yes, ma'am. Okay, very good. Then the next important river which may be asked in your examination is river Satluj. So see this line for river Satluj. It is also coming from near Lake Mansarovar. This line enters India here, in this region, Himachal Pradesh and then Punjab. These regions are the areas of
river Satluj. River Satluj enters towards Pakistan in this bordering area of India. ठीक है ना, यहाँ से ये सतलज कहाँ चली जाती है, जा करके इसमें झेलम और चिनाब रावी ये सब के जॉइंट वाटर में यहाँ पे मिल जाती है. ठीक है ना, आर यू सीइंग दिस? सो अल्टीमेटली Yes, ma'am. is also joining Yes, Indus and draining into Arabian Sea. ठीक है, तो what is the source and the mouth of river Satluj? It arises near river Lake Mansarovar and drains into the Arabian Sea. हाँ बस, तो सोर्स हो गया नियर लेक मानसरोवर और माउथ कहाँ हो गया, अरेबियन सी हो गया. सोर्स मतलब बिगनिंग और एंड मतलब उसका माउथ, है ना. तो ये दो रिवर है, इन दो रिवर में से कोई रिवर एग्जाम में आ सकता है. फिर तुम यहाँ आ जाओ, गंगा रिवर. तो गंगा जो स्टार्ट होती है, यहाँ पे एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री. गंगोत्री ग्लेशियर. गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, जहाँ इसको भगीरथी कहते हैं. इस स्ट्रीम को क्या कहते हैं, भागीरथी. और इधर से भी एक और स्ट्रीम आ रही है, उसको कहते हैं अलकनंदा. तो अलकनंदा और भगीरथी दो स्ट्रीम आकर के यहाँ ज्वाइन कर लेती है. इस जगह का नाम है देवप्रयाग, है ना. बहुत बच्चे जो अगर घूमने गए होंगे उधर, यस मैम, केदारनाथ बद्री आश्रम ये सब, तो वो देखे होंगे देवप्रयाग. तो देवप्रयाग में दो स्ट्रीम आकर के मिलते हैं, अलकनंदा और भागीरथी, और यहीं से गंगा नाम पड़ जाता है ना. ऐसे तो भागीरथी भी गंगा ही है, लेकिन यहाँ से एग्जैक्टली जब दोनों स्ट्रीम मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गंगा. तो गंगा फिर यहाँ से स्टार्ट होती है. तो गंगा हरिद्वार में, यहाँ पे हरिद्वार है, तो हरिद्वार से ये एकदम प्लेन लैंड में आ जाती है. और हरिद्वार के पहले ये अपने माउंटेनस कोर्स में रहती है. Mountainous course is its upper course, and then in the plain land it enters from Haridwar and flows through Uttar Pradesh, right? ये उत्तरांचल से आते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए और थोड़ा सा यहाँ पर और इस तरफ कर्व हो जाता है यहाँ, और ये बिहार से होते हुए, ये बिहार से होते हुए कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश. और बांग्लादेश में यहाँ सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए और इसमें ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में. ठीक है ना. तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिवर गंगा? मैम गंगोत्री ग्लेशियर. द माउथ ऑफ रिवर गंगा, Bay of Bengal. Bay of Bengal. Bay of Bengal. What are the two head streams of Ganga? Alaknanda and Bhagirathi. Alaknanda and Bhagirathi. Alaknanda and Bhagirathi. And where these two streams meet, what is the name of the place? Haridwar. Haridwar. Devprayag is the right answer. Devprayag. At Devprayag, Alaknanda and Bhagirathi meet or join together. Further it moves, and then at Haridwar it enters into the plain land. After crossing mountainous area, it enters into plain land. Okay, and so the whole of the states are Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, right? And another country is Bangladesh. So these are the regions from where river Ganga flows. And river Ganga is the biggest river of India, and it has a very big river basin. Why very big river basin? Biggest river basin of India. Why? Because there are hundreds and thousands of tributary rivers which join from both sides, from left bank and from right bank. ठीक है ना? तो एक गंगा का आपको लोकेशन मार्क करने के लिए एग्जाम में आ सकता है. एग्जाम में सिर्फ मैप वर्क ही आएगा इस बार. और यहाँ दूसरी रिवर जो है उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है कौन सी? यमुना रिवर. तो यमुना रिवर जहाँ से निकलती है उसका नाम है क्या, बोलो? यमुनोत्री. वेरी गुड, यमुनोत्री. Yamunotri. हाँ, यमुना जहाँ से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर. ग्लेशियर को कैसे डिफाइन करेंगे, बोलो? व्हाट इज अ ग्लेशियर? A big bank of ice. हाँ, a river of ice is known as glacier.
ठीक है ना। ग्लेशियर बिल्कुल फ्रोजन होता है तो उसका मूवमेंट का पता नहीं चलता है, लेकिन वो बहुत स्लोली मूव भी करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, रिवर ऑफ आइस कहते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, सॉरी यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है। ठीक है, तो यमुना शुरू में बहुत ही साफ सुंदर नदी है ना, इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन यहाँ यूपी और दिल्ली वाले रीजन में आते आते ये बहुत पॉल्यूटेड हो जाती है, और आगे बढ़ते हुए यमुना रिवर को बहुत सारे बड़े बड़े ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करते हैं, जैसे रिवर चंबल, सिंध, केन, ये सब ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाता है यमुना में, समझे। शुरू में बहुत कम है वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ज्यादा यहाँ एमपी राजस्थान के साइड से ये सब जो रिवर आने यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा होने से यमुना यहाँ क्लीनर हो जाती है, कुछ साफ हो जाती है। ठीक है ना। हाँ माही, माइक बंद कर लो। तो यमुना रिवर जहाँ ज्वाइन करती है उसको, उस जगह का क्या नाम है बताओ? प्रयागराज। हाँ वेरी गुड, प्रयागराज। हाँ किसने जवाब दिया? प्रयागराज, नाम बताओ। ओम। ओम, अच्छा। माही, what is the name of the place where Ganga and Yamuna meet? प्रयागराज। माही, प्रयागराज। प्रयागराज। हाँ ठीक है, और प्रयागराज का पुराना नाम क्या था बोलो? इलाहाबाद। 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 ठीक है, माही जवाब देना जब पूछा जाता है। ठीक है माही, फिर से बोलो, व्हाट इज द कन्फ्लुएंस, नेम ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। ओनली माही विल स्पीक। माही 9A, रोल नंबर 27। माइक ऑन करके कहीं घूम रही है ना, लग रहा है ऐसा। शी इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। हाँ, तो अब हम लोग यमुना के बारे में बात कर रहे थे कि इस यहाँ जहाँ कन्फ्लुएंस मतलब दो नदियों का संगम, तो कन्फ्लुएंस का नाम पहले था इलाहाबाद, और अभी नया नाम क्या है? प्रयागराज। ये प्रयागराज। हाँ, यमुना और गंगा मिल के जब आगे बढ़ती है तो इधर साउथ की तरफ से, मतलब सेंट्रल हाईलैंड की तरफ से सोन रिवर आके ज्वाइन करती है। बहुत सारे रिवर हैं ज्वाइन करने वाले, लेकिन जो मेजर रिवर है उसी का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो तुमको ये सोन रिवर तो मैप में नहीं आएगा, लेकिन गंगा को याद रखना कि गंगा को किस तरह से हम मार्क करेंगे। ये डिस्टेंस जो है ना, नेपाल के बाद से इधर साउथ की तरफ ये गंगा कहाँ तक आ रही है, और इधर बिहार में एकदम नॉर्थ बिहार में आ जा रही है, देख रहे हो ना, मतलब मिडिल ऑफ बिहार में आ जा रही है यहाँ पे। तो इसको ना बहुत अच्छा एक अंदाजा रहना चाहिए कि लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ से गंगा का लाइन ड्रॉ करते करते इधर पूरा एमपी में चले आएंगे, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो आपको एक अंदाज रखना है कि हमको यूपी, बिहार, ये सब से इसको क्रॉस कराना है गंगा को, और इधर बांग्लादेश में इस जगह से एंटर करेगा। समझे, ये पॉइंट भी याद रखना कि बांग्लादेश में कौन सी जगह से ये एंटर कर रही है रिवर, तो यहाँ से। ठीक है, और यहीं से एक बाइफर्केशन हो जाता है, गंगा रिवर का एक ब्रांच अलग हो जाता है। इसका क्या नाम है बताओ? हुगली रिवर। ऐसे रिवर को डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, जो मेन ब्रांच से सेपरेटेड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो ये भी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में अलग से जा रही है। ठीक है, और जो मेन ब्रांच है वो बांग्लादेश होते हुए जा रही है इसमें बे ऑफ बंगाल में, और वो अकेले ही नहीं जा रही है रिवर, उधर से ब्रह्मपुत्र रिवर भी आके उसको ज्वाइन करती है। ठीक है ना, तो ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ये स्पेलिंग है। ठीक है ना, बताओ क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में? जमुना। जमुना। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो रिवर। सांगपो रिवर। सांगपो रिवर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये सांगपो रिवर जो है ऐसे यू टर्न बनाते हुए ऐसे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो यहाँ पर एक ना हाई माउंटेन पीक है हिमालय का, नामचे बरवा। वेरी गुड, नमचा बरवा। नमचा बरवा। देखो ये सारी चीज तुम्हारा जनरल नॉलेज एनरिच कर रहा है। तो आज के क्लास को ना एक क्विज क्लास की तरह समझो कि हम लोग क्विज की तैयारी कर रहे हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, और यहाँ पे इसका डीप गॉर्ज भी बनता है।
रिवर गॉर्ज कहाँ बनाते हैं? जहाँ पे माउंटेनस मैम एरिया, माउंटेनियस कोर्स। हाँ डीप माउंटेनस, वैलीज होते हैं माउंटेन के। बहुत डीप कटिंग करते हैं, एकदम चैनल की तरह डीप कटिंग कर लेते हैं रिवर, तो उस डीप वैली को क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। ये यू शेप वैली होता है। प्लेन लैंड में देखोगे ना तो रिवर का वैली वी शेप होता है, उसको वी शेप वैली कहते हैं प्लेन लैंड में। और माउंटेनस एरिया में जो वैली बनते हैं उसको यू शेप या गॉर्ज कहते हैं। यू शेप। तो सबसे बड़ा डेल्टा ये दोनों रिवर बनाते हैं, दुनिया की सबसे सुंदरवन। बड़ा डेल्टा, हाँ दुनिया का सुंदरबन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। तो आपका नॉर्दर्न रिवर में बस इतना ही प्रैक्टिस करना है। कौन कौन सा? सतलज, इंडस, गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, बस ब्रह्मपुत्र। प्रैक्टिस करना है। ये सब रिवर का अपना आइडिया रखो, लोकेशन का, चंबल ये सब का, कि ऐसे ये नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है, यमुना में मिल रहा है, ये अपनी जानकारी के लिए। बेतवा और चंबल और बेतवा ही नहीं है, सिंध और केन भी है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और फिर एक सोन रिवर है। ये सब सेंट्रल हाईलैंड से जाने वाले रिवर हैं जो गंगा को या यमुना को ज्वाइन करते हैं। अब आओ इधर, पेनिनसुलर रिवर के बारे में अब स्टडी करना है। पेनिनसुलर रिवर मतलब ये जो ट्रायंगुलर इंडिया है यहाँ से लेके साउथ की तरफ, सीजनल रिवर। तो इसमें जो सीजनल रिवर्स हैं मैम एरिया साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। हाँ, तो उसमें से ना तुमको 6 रिवर का प्रैक्टिस करना है एग्जाम के लिए, क्योंकि इस बार सिलेबस में सिर्फ मैप वर्क ही है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? नर्मदा और नर्मदा तापी। नर्मदा और तापी से स्टार्ट करते हैं। जरा माही को तुम लोग फोन कर देना, माही की फ्रेंड है ना, तो तुम लोग फोन कर देना उसको बाद में कि तुम्हारा माइक ऑन रहता है और आवाज आती है उधर से, और वो क्लास में जवाब भी नहीं देती है। तो यहाँ देखो, अब नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर ना यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक माउंटेनस एरिया है, अमरकंटक इधर, यहाँ से ये निकल करके इधर वेस्ट रिवर है, समझे? ये रिवर क्या है? वेस्ट फ्लोइंग। और ताप्ती भी क्या है? वेस्ट फ्लोइंग। नर्मदा एंड तापी वेस्ट फ्लोइंग, दोनों वेस्ट फ्लोइंग है, मतलब इनका माउथ किस में है? तो अरेबियन सी में। ठीक है, और ये दोनों रिवर इंडिया के एकमात्र ऐसे रिवर हैं कि जो रिफ्ट वैली से फ्लो करते हैं। ठीक है, ये रिवर का जो रास्ता है वो किस जगह पे? जो फाउल्टिंग की वजह से जमीन जो नीचे सबसाइड कर जाता है, लॉन्ग क्रैक बनते हैं ना सरफेस पे, इंटीरियर फोर्स की वजह से, तो लैंड सबसाइड कर जाता है, तो उसी सबसाइडेड पार्ट को कहते हैं रिफ्ट वैली। मतलब ब्रेक होने से वो वैली बना है, सरफेस के ब्रेक होने से वो वैली बना है। तो रिफ्ट वैली में नर्मदा भी फ्लो करती है और रिफ्ट वैली में तापी भी फ्लो करती है। तो यही दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ के रिवर को देखो, इधर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग में यही दो तुमको मैप के लिए प्रैक्टिस करना है, नर्मदा एंड तापी। अब यहाँ देखो, कभी कभी क्या रहता है ना कि ये नर्मदा का लाइन ऐसे मैप में ड्रॉ किया हुआ रहता है, नर्मदा का या तापी का, तो तुमको ना ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर पे हम नर्मदा लिखेंगे, किस पे तापी लिखेंगे। एक बार ना ये तापी का लाइन एग्जाम में आया हुआ था, लाइन ड्रॉ किया हुआ था, बच्चे इसके ऊपर नर्मदा लिख के चले आए। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली नर्मदा कौन है और तापी कौन है। ठीक है ना, यहाँ इसके माउथ से पहचानो। यहाँ पे जो ज्यादा डीप चैनल है ना, डार्क चैनल, वो नर्मदा का है, और ये उसके बाद है, तुरंत ही बाद क्या है, एकदम साउथ वर्ड में उसके तुरंत तापी रिवर है। तो तापी रिवर कंपैरेटिव डिफरेंस है ना लोकेशन का, वो याद रखना। जा रहा है कि नहीं? लोकेशन याद नहीं। हाँ। अच्छा रुको, इसका तो रिमूव ही करने में भलाई है। मैम म्यूट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम लोग बेकार वेट कर रहे हैं इसके लिए। सॉरी कहाँ गया माही का? माही की को ना मैं परेशान नहीं लग रहा, क्लास में चल रहा है। हाँ हाँ, माही को तो कोई खबर ही नहीं है। क्लास डिस्टर्ब हुआ ना, तो तुम बताओ तब तक कि विच आर द टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स?
Narmada and river Tapi. Narmada and Tapi. Narmada and Tapi. Why rift valleys are formed? How rift valleys are formed? Ma'am, Due to the breaking of Because of the breaking of the surface. Due due to the faulting. denudation of the surface. No, not only denudation. Firstly, you have to say Drifting of faulting. surface. Due to faulting on the Earth's surface, deep cracks are formed, and a part is subsided. A part of the land is subsided. Subsided मतलब धस जाना. तो जो धसा हुआ हिस्सा है ना, उसी में ये बनता है रिफ्ट वैली. ठीक है? तो 2 रिवर तुम्हारा वेस्ट फ्लोइंग हो गया. अब आप इधर उड़ीसा की तरफ आ जाइए. अमृता क्लास चल रहा है. तो यहाँ उड़ीसा से स्टार्ट करो, महानदी रिवर से. तो यहाँ से महानदी, और ये महानदी इधर फ्लो कर रही है किधर? ईस्टवर्ड. तो उसका माउथ क्या हो गया बताओ? Bay of Bengal. Bay of Bengal. और उसी तरह से यहाँ देखो, कृष्णा रिवर का माउथ कहाँ हो गया? ये है रिवर कृष्णा. ये भी Bay of Bengal. उसकी भी पहले यहाँ देखो गोदावरी रिवर एक सबसे लंबी रिवर है पेनिनसुलर इंडिया में. साउथ की लंबी नदी है जो गोदावरी है. तो इसका भी माउथ है बे ऑफ बंगाल. सो ऑल Bay of Bengal. yes, all these are Bay of Bengal. flowing rivers. तो ये नर्मदा हो, सॉरी गोदावरी हो या कृष्णा हो, ये सब वेस्टर्न घाट से निकल रहे हैं. यहाँ पे कौन सा माउंटेन है बताओ? वेस्टर्न घाट. Konkan. Western Ghat Mountain. कोंकण तो प्लेन का नाम है जो And Western Coast. वेस्ट में है. तो रिवर जो निकलते हैं ना वो माउंटेन से, उसके स्प्रिंग होते हैं, वो उससे रिवर निकलते हैं. तो ये वेस्टर्न घाट से निकलने की वजह से ये इतनी लंबी नदी है ना, पूरे पेनिनसुलर पार्ट कैसे पास करते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जा रही है. तो गोदावरी को ही पेनिनसुलर इंडिया में क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा कहते हैं, है ना. अगर पूछा जाए तो हमारे जनरल नॉलेज में कि विच रिवर ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा? River Godavari. रिवर गोदावरी. नेम वन बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा. Tungabhadra. ये भी वेस्टर्न घाट माउंटेन से निकल रहा है. तो तुंगभद्रा इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा. हाँ. और यहाँ पे कृष्णा रिवर में एक और भी बड़ी नदी ज्वाइन करती है जिसका नाम है कोयना रिवर. कोयना. ठीक है. अब एक लास्ट देख लो, ये कावेरी रिवर है ना. तो कावेरी रिवर यहाँ पे ऐसे, ये भी वेस्ट से ऐसे ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए, और कावेरी रिवर तमिलनाडु को पार करते हुए यह कहाँ पर है? इसमें इसका माउथ बे ऑफ बंगाल. Bay of Bengal. तो ये कावेरी का जो बेसिन है ना वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तीनों में है. समझ गए? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तीनों में है. कावेरी वाटर डिस्प्यूट भी सुने होंगे तुम लोग. Yes, ma'am. Karnataka and Tamil Nadu. Yes, ma'am. ठीक है. तो अब इधर थोड़ा आगे हम लोग आ जाए. मैप प्रैक्टिस इतना ही करना है, समझ गए ना. अब थोड़ा ये भी देख. लेक चिल्का देख. हाँ बोलो. मैम गोदावरी का दूसरा नाम आप क्या बताई थी अभी? दक्षिण गंगा. ओके मैम. Godavari is the longest river in South India, and its other name is दक्षिण गंगा. दक्षिण गंगा. अब तुम देखोगे इतना लंबा जो रीजन क्रॉस कर रहा है, तो इसमें पूरा महाराष्ट्र है ना, थोड़ा इधर छत्तीसगढ़ का एरिया, फिर ये पूरा आंध्र प्रदेश, ये सब इसका बेसिन एरिया हो गया है ना. जितने स्टेट्स इसके रिवर या इसके ट्रिब्यूटरी के रीजन में आते हैं सब उसका बेसिन हो गया. समझ गए ना. तो एक एक रिवर के ना कई 4-4, 5-5 स्टेट में उसके बेसिन फैले हुए हैं. तो कुछ लेक का नाम देख लो कि ये जो महानदी डेल्टा है, यहाँ पे महानदी डेल्टा के ठीक साउथ में लेक चिल्का है.
इंडिया का ये चिल्का मैम लार्जेस्ट सॉल्ट लेक। हाँ, ये सब जनरल नॉलेज हो मैम गया। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं हर बर्ड्स आते साल। हैं, हाँ हाँ, अपने माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है चिल्का लेक। तो ये इसमें क्या होता है कि जो सी वाटर है ना, वो लैंड के अंदर आके जमा हो गया, और ये यहाँ पे बाहर में कुछ ऊंचे सैंड बार बन जाते हैं, सैंड बार। तो सैंड बार से ये वाटर सेपरेटेड लगता है, लेकिन जब भी हाई टाइड आएगा ना या ऊंचे वेव्स आएंगे तो ये इसके दोनों लेवल बराबर हो जाता है, लेक और सी का, समझ गए। और जब कम रहेगा वाटर तो ये सेपरेटेड रहता है। ये उसी तरह से यहाँ पे लेक कुल्लेरू है, यहाँ पे लेक पुलिकट है, पुलिकट, ठीक है, ये तमिलनाडु कोस्ट में। फिर यहाँ पे एक बहुत ही नेचुरल हेरिटेज वाला एक लेक मैम आंध्र प्रदेश में है वो। हाँ, चलो ये देखो वेम्बनाड लेक, ये लंबा सा एक लेक है यहाँ पे, ये भी बैक वाटर से बना हुआ है। बैक वाटर मतलब ये सी वाटर्स के अंदर आने से बना है, केरला। हाँ, सी वाटर के लैंड के अंदर आने से बना है, इसको वेम्बनाड लेक कहते हैं। तो लेक्स में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। एक और लेक है जो कि सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का, है ना। चिलिका लेक। हाँ, वो तो है लैंड के अंदर सॉल्ट वाटर लेक। यहाँ देखो लेक सांभर, हाँ लेक सांभर, है ना। यहाँ से सॉल्ट भी मैन्युफैक्चर होता है, यहाँ इस जगह से, इस लेक से। इसका सॉल्ट बहुत कॉस्टली होता है। ये इनलैंड लेक है, मतलब लैंड के अंदर का ये लेक है, ये कोई कोस्टल एरिया में नहीं है। यहाँ इवेपोरेशन इतना ज्यादा होता है कि इसके वजह से सॉल्ट बहुत यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो गंगा के बारे में ये सब तो हम लोग पढ़ लिए। इधर से अलकनंदा रिवर आती है, इधर से भगीरथी रिवर आती है, और यही है देवप्रयाग, ठीक है ना। कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एंड देवप्रयाग, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर का सोर्स और माउथ पढ़ ही लिए तुम लोग। यस मैम। यस मैम, सोर्स उसका मैम नियर मानसरोवर लेक। मैम मानसरोवर लेक And mouth is in Bay of Bengal. मैम उसका माउथ होगा बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में था। बिल्कुल ठीक। और नमचा बरवा का नाम यहाँ पे है। तुम लोग ना एक बार इसकी रीडिंग जरूर कर लोगे अपने नॉलेज के लिए। ये यू टर्न बनाती है नमचा बरवा के पास और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। यहीं पर इसका एक गॉर्ज बनता है, और इसके जो ट्रिब्यूटरी रिवर हैं उसको दिबांग और लोहित कहते हैं, ठीक है, दिबांग और लोहित कहते हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है, समझ गए। यस मैम, रिवर दिहांग। Yes, ma'am. तो हम लोग साउथ इंडिया के रिवर को एक एक लाइन और देख लें, ठीक है। सॉरी, ये तो क्लाइमेट में आ गया। ये देखो, अब ना तुम्हारा थोड़ा टाइम भी अब खत्म हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा इस लेसन को वाइंड अप कर लें। और कल के बारे में तुमको बता दें, इकोनॉमिक्स का जो लेसन 2 है ना, उसके सारे क्वेश्चन मैम, जो लेसन वाले क्वेश्चन आंसर है वो सब बना के रखना, कल के क्लास में वही हम पूछेंगे, ठीक है। उसी के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। मैम लेसन ही वाला। हाँ, लेसन वाला जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है लेसन 2 के बाद एंड में, उसको। मैम वो तो कल ही का था ना होमवर्क, वो तो हाँ, हो गया। होमवर्क में भी था, हाँ होमवर्क में भी था वो, तो होमवर्क कंप्लीट कर लेना और तुमसे एक एक करके हम आंसर पूछेंगे, ठीक है। यहाँ देखो नर्मदा रिवर, कि नर्मदा रिवर जहाँ से निकलती है उस हिल का नाम है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। और ड्रेन किस में करती है, तो अरेबियन सी में, अरेबियन सी। ऐसे ही देखो गोदावरी रिवर, जिसको दक्षिण गंगा कहते हैं, ये वेस्टर्न घाट से निकलती है इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र
और लेंथ कितना है 1500 किलोमीटर है। 1500 kilometer. हाँ, ये पूरे महाराष्ट्र को पार करते हुए और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब को में इसका बेसिन फैला हुआ है। ठीक है, तो गोदावरी रिवर एक बहुत बड़ी नदी है जिसके ट्रिब्यूटरी का नाम अंडरलाइन कर लो। रिवर पूर्णा, रिवर वर्धा, रिवर प्रणहिता, रिवर मांजरा, रिवर वेनगंगा एंड रिवर पेनगंगा। इसको अंडरलाइन कर लो। ये तुम अपने जनरल नॉलेज के लिए याद रखोगे कि गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज का क्या क्या नाम है। रिपीट करें, रिवर पूर्णा, रिवर वर्धा, रिवर प्रणहिता, रिवर मंजरा, रिवर वैनगंगा, रिवर पेनगंगा। हाँ, याद करना भी आसान है। गंगा गंगा इसमें लगा हुआ है दोनों में, लास्ट में, और पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पेनगंगा। चलो, अब महानदी जो कि उड़ीसा में देखे तुम लोग, जिसका कि डेल्टा बनता है, तो महानदी छत्तीसगढ़ में स्टार्ट होती है और ड्रेन करती है किसमें, तो बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। जो ड्रेनेज बेसिन है ना, वो कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा. उड़ीसा। झारखंड एंड उड़ीसा। तो तुम लोग ना ड्रेनेज बेसिन का मतलब समझ गए कि जहाँ मेन स्ट्रीम है ना, मान लो महानदी का जो मेन स्ट्रीम ड्रॉ किया हुआ है, हो सकता है कि वो उस स्टेट में नहीं हो, महाराष्ट्र में, लेकिन उसके ट्रिब्यूटरी उधर से आ रहे हैं, तो वो सब मिला करके उसका एरिया होता है जिसको रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ठीक है, इसलिए इतने सारे स्टेट्स का नाम आ जाता है। अच्छा, कृष्णा बेसिन। अब कृष्णा कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वेस्टर्न घाट में महाबलेश्वर से। ठीक है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग मतलब पानी के झरने होते हैं जो माउंटेन में होते हैं, तो महाबलेश्वर से ये नदी स्टार्ट होती है, कृष्णा रिवर, और गोदावरी से 100 किलोमीटर छोटी है ये लंबाई में, और इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, और उसके बाद है कोयना, उसके बाद है घाट प्रभा, मूसी, भीमा। तो इसके भी अंडरलाइन कर लो इसको, ये अपने जीके को बढ़ाने के लिए ये सब है ना। अभी तुमको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अपने नॉलेज के लिए ये जान लो। पेंसिल से अंडरलाइन करो, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा। ये किसके ट्रिब्यूटरी है बताओ? रिवर कृष्णा बेसिन. कृष्णा बेसिन। अच्छा, अब देखो, जो कावेरी रिवर है, जो मेनली तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है, लेकिन ये भी वेस्टर्न घाट से निकलती है, इसलिए 3 स्टेट को कवर करती है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। यहाँ देखो, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इसमें फैला हुआ है। तो इसके ट्रिब्यूटरीज को भी अंडरलाइन करो कि कावेरी के कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है, अमरावती, भवानी, हेमावती, कावेरी, ये 4 काबिनी। हाँ। और एक जनरल नॉलेज का पॉइंट यहाँ देखो कि द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, और इसका नाम है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम नाम है इस वाटरफॉल का, जो सेकंड वाटरफॉल है, और जो बिगेस्ट वाटरफॉल है उसको जॉग फॉल्स कहते हैं। यहाँ है ना कि द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, फाइंड आउट। तो ये इसको कहते हैं जॉग फॉल्स। वो श्रावती नदी बनाती है, वो भी नदी इसी की ट्रिब्यूटरी है, जॉग फॉल्स, JOG, जॉग फॉल्स। कावेरी। हाँ, अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हारा टाइम भी कितना बचा है, बस 1 मिनट बचा है। 71% of the world's surface is covered with water, but 97% of that is salt water. मतलब ओशन वाटर कितने हैं, 97% है, तो सिर्फ 3% बचा फ्रेश वाटर, जो हम यूज करते हैं वो बहुत कम है वाटर, क्योंकि ज्यादा वाटर तो ओशंस और सीज में है। Of the 3% that is available as fresh water, 3/4 of it is trapped as ice, है ना। ये 3% ही फ्रेश वाटर है, और 3% भी हम लोग को यूज करने के लिए नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका 3/4 जो है वो आइस के फॉर्म में। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अब तुम लोग ना कल इकोनॉमिक्स क्लास के लिए तैयार रहना, जिसमें सारा क्वेश्चन आंसर तुमको रीडिंग करके बताना है, ओरली याद करके भी रखना, सेकेंड लेसन। ओके, तो आई एम स्टॉपिंग द क्लास हियर। तुमको सबको बता थैंक यू मैम। बाय। ओके मैम।
है ना वो Thank you, ma'am. एग्जाम में नहीं आ रहा Thank है। you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके Thank you, ma'am. वेलकम Thank you, ma'am. वेलकम बी prepared for tomorrow's class with economics question answers. Okay, Okay, ma'am. ma'am. Bye. Okay, ma'am. Okay, bye all of you.